sub branch of physiology that is called clinical physiology. We are mainly concerned. We will teach you physiology, human physiology, but you will use human physiology as clinical physiology. So when you will treat, when you have to understand the disease process, or you have to develop the hypothesis of what is the real problem with the person or patient, then that all called comes under clinical physiology. And that is, we say, with a different word called pathophysiology of the disease. Pathology means disorder, physiology means disorder, physiology of disorder. So you are in the later your clinical life, you will be dealing with only clinical physiology. I hope voice आ रही है आप लोगों को? I am audible? Yes, sir. Books, you can consult these two books, Guyton and Genong. These are the book recommended by the Department of Physiology, and a student also recommends one book called A.K. Jain. It is your choice, but I will suggest you follow Guyton or if possible Genong. लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल था हमारा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक organelles, describe the structure and function of membrane and intercellular junction. So we have already covered these learning objective, and you become aware of this organization of cell, functional aspect of cell, structure inside the cell organelles and their function. We have discussed membrane. This slide is concerned with the definition of cell, then organelles of the cell, and these are the functions of organelles of the cell. Cell membrane function, protective layer, separate internal environment from the external environment, control transport across membrane. Inside the cell, there is an environment called cytoplasm. It is different from the external environment. There is variation because of the why there is variation inside the cell, because there are many cellular machinery that produce lot of substances inside the cytoplasm. Organelles, mitochondria, endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosomes, lysosomes, secondary lysosomes, residual bodies, peroxisomes, centrosomes, cytoplasmic lipid. These are the cell organelles. Important cell organelles for you at your stage. All are important, but there are many disorders related to cytoskeleton. What are the structures related to cytoskeleton? They are microtubule, cilia, flagella, intermediate filaments, microfilaments, disorders of the cytoskeleton. Alzheimer's an example, alcoholic liver diseases. So molecular motors, again very important. Motion inside the cell is produced by transport, or motion inside the cell is produced by molecular motors. Conventional kinesin, dynesin, myosin 1, myosin, these are the molecular motors. This is the basis for the nanotechnology. Nanotechnology का concept यहीं से आया है. Okay, this slide shows the molecular motors, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल के अलोंग, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट होता है. न्यूक्लियस, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद न्यूक्लियस, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट. फंक्शन भी आप लोगों को सब मालूम है. मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, phosphate end होता है. Both the side, inside and exterior, both are aqueous in nature. So the phosphate aligned towards the aqueous side, and the lipid tails are lipid in nature. So they align towards each other, facing each other. Lipid soluble substances can easily cross the membrane, like oxygen, carbon dioxide. But aqueous soluble substances, they have to use special proteins called carrier proteins or transport proteins. Major phospholipids are chemical constituent phospholipid of the membrane, phospholipid, cholesterol, glycolipid. Major phospholipids are phosphatidyl choline, glycosphingolipids, sphingomyelin, and cholesterol. Cholesterol is a very important constituent of the membrane because it determines the fluidity of the membrane. If there is too much cholesterol, membrane becomes rigid. Okay, so glycolipids, the carbohydrate attached to lipids and protein glycolipids, they are antigenic in nature. ये देख रहे हैं आप स्लाइड, जो वैक्सीन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, especially the Covishield we are developing, it is based on this concept. The glycolipids and the glycoproteins of the virus is used to produce antibodies. Okay, तो यहाँ देखिए glycolipids analogs are being. Hello, what is the problem? Voice नहीं आ रही? Voice नहीं आ रही आप लोगों को?
सर धीरे आवाज है सर, बहुत स्लो है वो। स्लो हो रही है, कोई बात नहीं, ये रिवीजन है, अभी थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है लास्ट ईयर का, लास्ट लास्ट क्लास का। ग्लाइकोलिपिड्स एंड एनालॉग्स आर बीइंग यूज्ड इन्वेस्टिगेटेड एज पोटेंशियल ड्रग्स एंड वैक्सीन। अब आ रही है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, वैक्सीन एडजुवेंट। सो दिस इज डायग्राम में, आप लोग म्यूट कर लें, सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो सारी आवाजें क्लास में आती रहेंगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज इट विल गिव द फील ऑफ रियल क्लास। ओके, देखिए क्लास में इंटरेक्शन जब भी पॉसिबल होता है जब स्टूडेंट शोर करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग नजर तो आ नहीं रहे हैं, तो शोर आपका सुनाई देता है, तो उससे लगता है कि somebody is in my class, but we are here to acquire knowledge. शोर is a by product of class. ओके, जैसे कहते हैं ना कि उसकी आपको मिलेगा जरूर, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये लिपिड बाई लेयर है, इसमें सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, देखिए ग्लाइकोलिपिड्स भी नजर आ रहे हैं। आप लोग बीच बीच में बोलते रहा करिए कि हाँ सर ओके इट इज क्लियर, ओके क्लियर है ना। Functional aspects: semi-permeable membrane allow fat soluble substances to cross like oxygen, carbon dioxide, barriers है एक्वस एनवायरनमेंट के लिए। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्रोटीन्स, देयर आर पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करती हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है और ये फंक्शंस हैं सारे इसके। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन: डिफाइन बाउंड्रीज टू द सेल, प्रोवाइड शेप। एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना होगा, डिस्क्राइब में सब एलोबरेट करना होगा। मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट, मेंटेन वॉल्यूम ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल, सेल टू सेल अटैचमेंट। सेल टू सेल अटैचमेंट कैंसर्स में क्या होता है कि दो चीजें होती है कैंसर सेल्स की, दे आर टू प्रॉपर्टीज। वन इज व्हाट, एक प्रॉपर्टी क्या होती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कैंसर सेल की? Contact inhibition. मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। अब जो नॉर्मल सेल्स में देयर इज अ वेल डिफाइंड सेल टू सेल अटैचमेंट। मेटास्टेसिस मींस सेल बिकम दे डिसलॉज फ्रॉम द ओरिजिनल साइट एंड दे लॉजेस टू न्यूअर साइट। तो कैंसर्स में क्या होता है? मेटास्टेसिस। कैंसर लीवर सेल का हुआ, सेकेंडरीज का मिलती है ब्रेन के अंदर। कहाँ मिलती है सेकेंडरी? ब्रेन में, स्पाइन में मिलती है। तो लंग कैंसर हुआ, सेकेंडरीज का मिल रही है, ब्रेन में मिल रही है। सेकेंडरीज का मतलब है primary side of the, there is a primary side of the cancer and there is a second. So treatment of cancer becomes very difficult because of the metastasis. And this, what is the real culprit behind the metastasis? This become deficient. Cell to cell attachment, कैम कैट molecules जो होते हैं वो deficient हो जाते हैं या disturb हो जाते हैं, abnormal हो जाते हैं because of many reasons. Uncontrolled growth is one part, metastasis is another part of the cancer cells. These are two properties. So you have to do two things: either you stop the growth, kill the cell, or prevent metastasis. If you can successfully achieve these two targets, stop growth, uncontrolled growth, and stop metastasis, you will be able to control or regulate the cancer cells. रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन, आपको मालूम है रिसेप्टर्स इम्यून फंक्शन लाइक ब्लड ग्रुप, और बहुत सारे आजकल वैक्सीन हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। रेस्टिंग सेल्फ डिटेक्शन में भी इम्यून का रोल है, वो आगे डिस्कस करेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉलोड बाय जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स ट्रांसमिशन। नर्व में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और ट्रांसमिट होता है। सिक्रेटरी फंक्शन, थायराइड सेल का क्या काम है? T3 T4 करना। तो ये सारे फंक्शन कहाँ होते हैं? इट हैपेंस ऑल एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फंक्शनली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको हम वीडियोस दिखाते हैं सेल का। ओके, हेलो, यस सर। Yes, sir. वॉइस आ रही है? अब ये वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ हम, ठीक है? ओके वसीम, ये वीडियो शेयर कैसे? यहाँ से तो वेबएक्स से कर रहे हैं ना हम लोग, अनशेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जो है मिनिमाइज कर दें तो नहीं, इंसर्ट नहीं कर रहे, वो हैंग कर जाएगा सिस्टम। पीपीटी बंद करना पड़ेगा। अच्छा, वो ऑफ करना पड़ेगा चीजें के लिए। अच्छा, अब आ गया वीडियो शेयर, आ गया शेयर। हाँ वो आ जाता है। ये शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ। ओके, आगे आपको वीडियो नजर आ रहा है? दिस वीडियो इज विजिबल टू यू?
Yes, sir. yes sir. अब आप लोग देखिए और बहुत गौर से सुनिएगा। While red blood cells are carried away at high velocity by a strong blood flow, leukocytes roll slowly on endothelial cells. P-selectins on endothelial cells interact with PSGL1, a glycoprotein on leukocyte microvilli. Leukocytes, pushed by the blood flow, adhere and roll on endothelial cells because existing interactions are broken, while new ones are formed. These interactions are possible because the extended extracellular domains of both proteins emerge from the extracellular matrix, which covers the surface of both cell types. The outer leaflet of the lipid bilayer is enriched in sphingolipids and phosphatidylcholine. Sphingolipid-rich rafts raised above the rest of the leaflet recruit specific membrane proteins. Raft's rigidity is caused by the tight packing of cholesterol molecules against the straight sphingolipids hydrocarbon chains. Outside the rafts, peaks in unsaturated hydrocarbon chains and lower cholesterol concentration result in increased fluidity. At sites of inflammation, secreted chemokines bound to heparin sulfate proteoglycan on endothelial cells are presented to leukocyte 7 transmembrane receptors. The binding stimulates leukocytes and triggers an intracellular cascade of signaling reactions. The inner leaflet of the bilayer has a very different composition than that of the outer leaflet. While some proteins traverse the membrane, others are either anchored into the inner leaflet by covalently attached fatty acid chains or are recruited through non-covalent interactions with membrane proteins. The membrane-bound protein complexes are critical for the transmission of signals across the plasma membrane. Beneath the lipid bilayer, spectrin tetramers arranged into a hexagonal network are anchored by membrane proteins. This network forms the membrane skeleton that contributes to membrane stability and membrane protein distribution. The cytoskeleton is comprised of networks of filamentous proteins that are responsible for the spatial organization of cytosolic components. Inside microvilli, actin filaments form tight parallel bundles, which are stabilized by cross-linking proteins. While deeper in the cytosol, the actin network adopts a gel-like structure, stabilized by a variety of actin-binding proteins. Filaments, capped at their minus ends by a protein complex, grow away from the plasma membrane by the addition of actin monomers to their plus end. The actin network is a very dynamic structure, with continuous directional polymerization and disassembly. Severing proteins induce kinks in the filament and lead to the formation of short fragments that rapidly depolymerize or give rise to new filaments. The cytoskeleton includes a network of microtubules created by the lateral association of protofilaments, formed by the polymerization of tubulin dimers. While the plus ends of some microtubules extend toward the plasma membrane, proteins stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus end depolymerization. Microtubules provide tracks along which membrane-bound vesicles travel to and from the plasma membrane. The directional movement of these cargo vesicles, membrane-bound change shape continuously, and their orientation is partly dictated by their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a diagonal centrioles, and located tenuously, and there it is. Clear envelope allow the import of particles containing mRNA and proteins into the cytosol. Here, free ribosomes translate the mRNA molecules into proteins. Some of these proteins will reside in the cytosol.
Others will associate with specialized cytosolic proteins and be imported into mitochondria or other organelles. The synthesis of cell-secreted and integral membrane proteins is initiated by free ribosomes, which then dock to protein translocators at the surface of the endoplasmic reticulum. Nascent proteins pass through an aqueous pore in the translocator. Cell-secreted proteins accumulate in the lumen of the endoplasmic reticulum, while integral membrane proteins become embedded in the endoplasmic reticulum membrane. Proteins are transported from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus by vesicles traveling along the microtubules. Protein glycosylation, initiated in the endoplasmic reticulum, is completed inside the lumen of the Golgi apparatus. Fully glycosylated proteins are transported from the Golgi apparatus to the plasma membrane. When a vesicle fuses with the plasma membrane, proteins contained in the vesicle's lumen are secreted, and proteins embedded in the vesicle's membrane diffuse in the cell membrane. At sites of inflammation, chemokines secreted by endothelial cells bind to the extracellular domains of G protein-coupled membrane receptors. This binding causes a conformational change in the cytosolic portion of the receptor, and the consequent activation of a subunit of the G protein. The activation of the G protein subunit triggers a cascade of protein activation, which in turn leads to the activation and clustering of integrins inside lipid rafts. A dramatic conformational change occurs in the extracellular domain of the activated integrins. This now allows for their interaction with ICAM proteins displayed at the surface of the endothelial cells. These strong interactions immobilize the rolling leukocyte at the site of inflammation. Additional signaling events cause a profound reorganization of the cytoskeleton, resulting in the spreading of one edge of the leukocyte. The leading edge of the leukocyte inserts itself between endothelial cells, and the leukocyte migrates through the blood vessel wall into the inflamed tissue. Rolling, activation, adhesion, and transendothelial migration are the 4 steps of a process called leukocyte extravasation. आप लोगों ने वीडियो देखा? Yes, sir. जी, ये जो हमने जो सेल बहुत आपको सिंपल फॉर्म में बताया था, इसकी फंक्शनैलिटी आपने ना एक वीडियो में, बहुत ही स्मॉल वीडियो है. It is the function performed by the cell is very complex. You understand? Very complex. We try to provide information in a very simple way, and then we develop our models, different models of diseases, of functions, and management, treatment of the disorders on these functionalities. आप लोगों को बाद में ये चीजें क्लैरिटी से होंगी. तो आपने कहा कितना टफ है सेल. माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे आप लोगों ने? माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे हैं कैसे मॉलिक्यूलर मोटर्स ट्रेवल कर रहे थे? ओके, आप लोग हाथ नजर आ रहा है. Yes, sir. तो अब आज आगे चलते हैं, क्योंकि हमें तो लेक्चर आगे करना है. और आज देखो ये वो पीपीटी नजर आया आपको? शेयर हुआ हमारा पीपीटी? No, sir. No, sir. अभी करते हैं शेयर. ये शेयर वाला कहाँ चला गया इसका? सर वीडियो के शुरू का यार वो पार्ट आई नहीं के पाया समझ। हुआ था. देखिए वीडियो का पार्ट आपको समझ में शुरू में नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि आपका एप्रिसिएशन नहीं है. सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं आपने अभी समझे नहीं है ठीक से. हमने आपको कल भी ये टास्क दिया था कि जो आपने आपको ये लिख के भेजना है कि आपको कितनी नॉलेज है. कोई एक ऑर्गेनेल उठा लीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंगल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. या शुरू का जो पार्ट था आपने याद होगा, उसमें क्या दिखाया था उन्होंने? वो साइटोस्केलेटन से रिलेटेड था, कैट कैम से, मॉलिक्यूलर मोटर से रिलेटेड था.
और बहुत ही डिफिकल्ट वाला एरिया था वो। तो सबसे पहले आप गेनोम में जाइए, देखिए गेनोम में साइटोस्केलेटन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। साइटोस्केलेटन एंड मोटर मॉलिक्यूलर मोटर्स का टॉपिक पढ़िए, उस पर असाइनमेंट सबमिट करिए और फिर दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वो तो बहुत ही एडवांस वर्जन था वीडियो का शुरू का पार्ट, ठीक है। वो सब फंक्शन, बस ये समझने की कोशिश करिए कि दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द डिफरेंट मशीनरी और डिफरेंट ऑर्गेनिल्स ऑफ द सेल। Sir, शेयर sir, am I audible? या हाँ, सब लोग ऑडिबल। Sir, बताइए बताइए। sir, can you just one more repeat how to refer the books? रेफर, देखिए बिल्कुल सिंपल बुक्स हैं। डिपार्टमेंट रिकमेंड 2 बुक्स, गाइटन and Genau. Okay, the books recommended by the Department of Physiology for undergraduate students, for the for graduate courses, MBBS and other courses. We always recommend Guyton and Genau. And अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं कि सीनियर्स क्या कहते हैं, या आप लोग बताइए कौन सी बुक आप लोगों को बताई गई है इसके अलावा, ठीक है। मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं आप लोग? आप लोग बोलिए Sir, और कौन सी किताब सर हम ये जानना चाहते हैं कि जानते हैं आप लोग? किताबें एक कैसे मिनट। पढ़नी है, ओरिएंटेशन कैसे बनाना है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, ये प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। ये प्रूवन फैक्ट है। जब हम कोई कार पसंद करते हैं तो कौन सी कार पसंद करते हैं नॉर्मली, कौन सी पसंद आती है? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? अगर आपसे कहा जाए आपको सिर्फ कार पसंद करनी है, खरीदनी नहीं है या आपको लेनी नहीं है, खाली बताइए कौन सी चॉइस रखेंगे आप? व्हाट इज योर बेस्ट चॉइस? नैनो तो गई, उसकी छुट्टी हो गई है। नैनो का मतलब तो आप एक एजेंट वाले लग रहे हैं मुझे जी। सर मर्सिडीज। देखो है ना मर्सिडीज। तो और रिलीजियस बुक कौन सी पढ़ेंगे? बाइबल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। तो ये जो है ना, इट इज इक्वलेंट टू ऑल दी फिजियोलॉजी के अंदर हम जिसे कहते हैं ना, बाइबल और फिजियोलॉजी जो है वो गाइटन और गेना। कार में देखोगे तो मर्सिडीज है। अब तुम लोग नैनो की बात करते हो तो तुम लोग खुद डिसाइड करो ना। हमारा काम तो आपको मर्सिडीज दिलाना है। कौन क्या वर्क है? माय टास्क इज व्हाट? टू मेक यू फैमिलियर विद मर्सिडीज। ओके, अब आपकी चॉइस है। आप हमसे क्यों कहलवाते हो कि साहब नैनो की ले ले? अब वो आपको मैनेजमेंट देखिए, अपना टाइम मैनेज देखिए। आपको सिंपल बात है, इफ यू आर गुड स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ऑलवेज फॉलोज रिकमेंडेड बुक बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर? जो डिपार्टमेंट, इसलिए कि एमसीक्यूज पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वेरीज, अगर जब डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो एक एजेंट से सॉर्ट नहीं होंगी। वो सॉर्ट किससे होंगी? किससे सॉर्ट होंगी? गाइटन और गेनोम। पर स्टूडेंट के सामने वो ना लॉन्ग टर्म मिशन विजन नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म विजन रखते हैं, सेशनल पास कर लें। नॉलेज एक्वायर करने का भी विजन बहुत क्लियर नहीं होता है उनका। वो हमें मोटिवेट करके आपको समझाना होता है कि you should have two visions. Number one vision, okay, I take your vision, passing the exam. But knowledge acquisition is what is the main purpose of all these process? Acquisition of knowledge which you can use for clinical, for treating the patient. So your knowledge should be perfect, not imperfect knowledge. And there are many discrepancies among the book. Even there are controversies among Guyton and Genong. And if you follow some other book, there will be many more discrepancies. So when you are starting your career, follow the best book. Okay? आप कोई क्वेश्चन रह गया आपको पूछना है? आई एम क्लियर टू यू? क्लियर हो गया आपको? हाँ, वीडियो तो शेयर हो चुका है। वीडियो लोड कर देंगे, वेबसाइट पे लोड कर देंगे, गूगल क्लास पे भी लोड कर देंगे, और आपके क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लोड कर देंगे। देखिए, जो काम इमीडिएटली ढंग से देखने का कंसेप्ट मत रखो, आपके याद करो, अभी देखना चाहिए था आपको। खैर एनीवे, अभी तो आपका शुरुआत है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अप्रिसिएशन डेवलप करने में, लेकिन आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्लास का लेक्चर बहुत छूट रहा है हमारा। तो दिस पार्ट इज कंप्लीट। अब बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन की ऐसे क्या होगा? there is an internal environment and there is an external environment. If you compare the extracellular fluid with intercellular fluid, you will find lot of difference among sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride. इनमें difference होता है, and this difference is important for the
survival of the cell. If you, or in cases of disorder, in cases of disease, what will happen? There is disturbances of these normal values. ये values change हो जाएंगी, आपको सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगा या बाहर कम हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इतनी डिफिकल्ट चीज क्यों पढ़ रहे हैं? कोई फायदा है पढ़ने का? अरे बना दिया ऊपर वाले ने, ऊपर काम कर रही है अपना ठीक से, तो हम क्यों पढ़े? कोई बता सकता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? भाई जरूरत थोड़ी ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने की. टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीज प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा. लाइक टेक एन एग्जांपल, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? पेशेंट प्रेजेंट विद सिंपल कफ, खांसी आती रहती है, ठीक है, एंड इफ यू गिव सिंपल कफ सप्रेसेंट या ऐसी दवा दे रहे हैं जो कफ को रोक देता है, उससे ठीक नहीं होगा. व्हाट? बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन दी, कहां पर है? डिफेक्टिव कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं, एंड देयर विल बी accumulation of, because of this there will be lot of accumulation of mucus, and mucus will create cough reflex. तो कफ आता रहता है. टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोसेस you have to learn, you have to acquire the knowledge of plasma membrane. Cystic fibrosis बिना इस कंसेप्ट के क्लियर ही नहीं होगा कि डिफेक्टिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन में, जिसके से क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स हो जाता है, दैट इनिशिएट द कफ रिफ्लेक्स. अगर आप सिंपल कफ का ट्रीटमेंट करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू, यू हैव टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर. कैल्शियम आयन चैनल को ठीक करना पड़ेगा. हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज रिलेटेड टू लंग. इसमें क्या होता है? प्रीटर्म बेबी. प्रीटर्म का मतलब क्या होता है? डिलीवरी बिफोर 9 months ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन. अब उसमें क्या होता है? लंग्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. व्हाई इट इज नॉट वेल डेवलप्ड? Because type 2 epithelial cells are not mature, and when they are not mature, surfactant will not be produced. When surfactant is not produced, what will happen? Alveoli will collapse. उसमें क्या होता है कि alveoli collapse कर जाते हैं, और जो है मेम्ब्रेन इस रेस्पिरेटरी डिस्निया मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा, एंड this is what we say hyaline membrane disease affect the lung at the time of birth, causing lot of respiratory distress to the adult. की भी होती है infant neonatal hyaline membrane disease, and there are adult में भी होती है, वो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी. पर cause is what? You have to treat the patient at the level of plasma membrane. Surfactant आपको जो है यूज करना है. अल्जाइमर्स में भी क्या होता है कि देयर इज, अल्जाइमर्स आप लोग जानते ही हैं, फॉस्फोलिपिड का अल्ट्रेशन हो जाता है मेम्ब्रेन में, लीडिंग टू व्हाट? अल्जाइमर डिजीज. टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीज प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉर्मल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें भी क्या होता है? मसल वीकनेस मिलती है. पेशेंट विल प्रेजेंट विद ओनली मसल वीकनेस, बट कॉज इज व्हाट? एट सम लेवल ऑफ जो फोर्स ट्रांसमिशन होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल प्रोटीन डिस्ट्रॉफिन. ये जब हम मसल बताएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम आई एम just informing you that because of the abnormalities of structural abnormalities of the membrane leading to functional abnormality or diseases. So to understand disease, to treat the disease properly, you have to learn plasma membrane. अब और क्या? ठीक है, बीमारी भी पढ़ ली, समझ में आ गया, लेकिन उसका क्या फायदा? बीमारी है तो है अपनी जगह, लेकिन यू कैन यूज दिस मेम्ब्रेन टू ट्रीट मेनी डिसऑर्डर. पॉलीमिक्सिन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो हम लोग यूज करते हैं. बहुत ही जो अल्सर्स हो जाते हैं ना स्किन के अंदर, आपने देखा होगा, जो हील ही नहीं हो रहे हैं, उसमें हम लोग पॉलीमिक्सिन भी देते हैं. पॉलीमिक्सिन भी क्या करती है कि बैक्टीसाइडल एंटीबायोटिक है. इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देती है, और इतनी टॉक्सिक होती है कि हम इसको लोकली यूज करते हैं, सिस्टमिकली यूज नहीं करते. डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है. अगर आप लोकली ना लेके इंजेक्शन कर लें तो इट विल आल्सो डैमेज यू. तो लोकल एप्लीकेशन बहुत सारे देखा हो ना, ऑइंटमेंट देते हैं डॉक्टर लोग अल्सर्स में, डायबिटिक अल्सर्स में ये सब यूज करते हैं हम लोग. तो उसमें क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है. व्हेन द मेम्ब्रेन आर डैमेज, द मल्टीप्लिकेशन पैथोजन विल स्टॉप. व्हेन द मल्टीप्लिकेशन विल स्टॉप, द अल्सर विल हील. ओके, सो इसको भी हम यूज एज ए
इस स्ट्रक्चर और फंक्शन को यूज कर सकते हैं कहाँ पर कि बहुत सारे ट्रीटमेंट डिवाइस कर सकते हैं हम लोग। ये आगे नहीं जा रहा है लेक्चर्स का मतलब क्या हुआ, हमको दूसरी स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी अब। Any question you want to ask up to this stage? If you want to ask, Sir, functions no of sir, everything is clear. sphingolipid. सर लास्ट स्लाइड में टॉपिकल प्रिपरेशंस लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब है? ट्रॉपिकल लोकली अप्लाइड है ना, एक होता है इंजेक्शन, आप खाते हैं दवाइयाँ, टैबलेट खाते हैं, सॉलो करते हैं, कैप्सूल सॉलो करते हैं। ट्रॉपिकल या लोकल एप्लीकेशन, जहाँ से अल्सर हो गया तो ऑइंटमेंट यूज करते हैं, तो उसको ट्रॉपिकल एप्लीकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस सर, थैंक यू सर। है ना? और पूछिए। यू आर Sir, योर बेस्ट इज वेरी, एक एक करके पूछो। हाँ बताओ। यस सर स्फिंगोलिपिड का हेलो। फंक्शन सर वो देखिए ऐसा है, सारा आप बुक खोलिए और बुक खोलने के बाद आप गाइडेंस खोलिए और पढ़िए, ठीक है ना, लिपिड्स को, यू विल गेट आंसर। इफ आई you want answer from my side, I will give you after the lecture because I am already short of. हमने आपको शुरू में बताया कि लिपिड्स का क्या काम है, कि मेम्ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड का एक फंक्शन बता दिया आपको, ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब स्फिंगोमाइलिन कौन से मेम्ब्रेन में होता है, कौन से सेल्स की मेम्ब्रेन में होता है, वो आपको खोजना पड़ेगा, न्यूरॉन्स में होता है, ठीक है ना। उसका क्या फंक्शन है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, इंसुलेटरी फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ थोड़े से एफर्ट भी करने पड़ेंगे, जाके गाइटन या गेनोम थोड़ी सी खोलिए, आंसर मिल जाए इट इज वेरी गुड, आंसर नहीं मिले कम टू मी, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? थोड़ा पढ़िए भाई, अपनी भी मेहनत करिए, हम तो कर ही रहे हैं आपके साथ, पर आपको भी करनी पड़ेगी। खाली हमारी तरफ से अगर आप चाहते हैं स्टॉप शेयरिंग, कैसे होगा भाई स्टॉप शेयरिंग, अब इसको शेयर कराना है हमको, तो पहले वाले शेयर, ये आपको दिखने लगा, आप लोगों को स्लाइड दिखने लगी ये वाली फ्रेश शेयर हो रही है आपके साथ? प्लीज स्टूडेंट, नो आंसर फ्रॉम स्टूडेंट साइड, आ रही है? ओके। सो यार ये वसीम, ये आगे आ नहीं रहा है, क्या चल रहा है स्लाइड में, जो है आगे इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है। नहीं, वो स्लाइड में हम खोलते हैं ना, तो हमारी स्लाइड तो बहुत सारी हैं, पर यहाँ शो ही नहीं हो रही है, ब्लैंक आ रही है। वो तो ब्लैंक ही होंगी ना। ब्लैंक नहीं है, बनाई है हमने। बनाई है तो दिखेंगी दिखेंगी ना आप। रुक जा, पहले हम ऐसा करते हैं, लैपटॉप खोलोगे, इसमें से डालते हैं, होता है ब्लैंक, ब्लैंक वाला कॉपी कर दिए। आप इससे कुछ बोलिए सर। नहीं ऐसा है ना, इसमें हमारे पास और भी पीपीटी है ना। ओके, तो वो उसमें नहीं आएगी, चाहिए आपका लैपटॉप ऑन करना है, क्योंकि ऐसा है ना, इसमें दिखा नहीं रहा है। हाँ वो क्योंकि वो ब्लैंक ही रहेंगे, ये। आप दूसरी साइड। हाँ वो हो जाता है, हाँ ब्लैंक है ये। Then I- वो एक्चुअली में क्या हुआ है, नहीं इसमें होंगी, मैंने शेयर कराई है यार, तो नहीं कर रहा है। इससे इसमें ले एक मिनट, इसमें एक और भी स्लाइड है, उसको खोल ले, शायद उसमें हो। हो सकता है ये आप ये खोल लीजिए। अभी खोल रहा हूं। इसमें होता है, इसमें मैंने कॉपी तो की थी। कर लेंगे सर, हाँ कर लो। आप अपना वो पासवर्ड करके उसमें से ले लिए तो वो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है ना कि नेटवर्क भी जा रहा है कभी। सबसे बड़ा मसला नेटवर्क का ही है। हाँ नेटवर्क पे है। तो स्लो नेटवर्क होता है, तो उसी में ऑन की कोशिश देखता करो। हूँ इसमें, देखो पता नहीं इसमें भी नहीं हाँ, है। पता चल जाएगा आपको। हाँ, कभी कभी ऐसे पीपीटी जब बनाते हैं ना सर, हाँ। अगर सेव नहीं करते तो पूरा काम हो उड़ जाता है। हाँ, अरे
अगर आपने ऑटो सेव में लगाना होता है, एक बार लगा दिए तो हमेशा रहेगा। नहीं, हमने तो बनाई बहुत सारी। हाँ देखिए इसमें दिख रही है, नहीं, इसमें तो दिख रही है, ये वाली नहीं आ रही, नई वाली ये सब आ रही। नहीं, नहीं आ रही। हाँ, इसमें आ रही है। हाँ तो आपने दूसरी वो देखी। हाँ, कॉपी गलत कर, पीपीटी कॉपी गलत कर दिया है, हाँ ये वाली कॉपी करना है। हेलो स्टूडेंट, बड़ा पेशेंट होके आप लोगों को बैठना पड़ता है भाई, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स और रिसोर्सेज के साथ वो कराया जाए, पर बिकॉज ऑफ सर्टेन शॉर्टकमिंग line sir. अब आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes sir. नाश्ता वाश्ता करें आप लोग या ऐसे ही आ गए हैं बिना नाश्ते के? नाश्ता कर लिया सर. अरे तो इसमें तो बैठ के क्लास में कर सकते हैं ना, नहीं है? बताइए, खाते रहिए, क्लास चलती रहेगी आपकी। यस, हंस रहे हैं आप लोग? अच्छा, आइए। ऑफलाइन कब हो रहा है सर स्टार्ट? ऑफलाइन हम भी चाहते हैं स्टार्ट हो जाए, ऑफलाइन में ही ज्यादा जो है वो है। कोई अप्रोक्स आइडिया सर कब तक होगा? अब ये तो मालूम नहीं यार, देखो दोस्त, अब शेयर करना होगा ना इसको, यहाँ से शेयर दी वीडियो। आगे आप लोग स्लाइड शेयर होने की देखिए। हाँ, ऐसे जल्दी से इसको हम कवर कर देंगे तो आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब बहुत स्पेशल फंक्शंस क्या हैं? डिस्क्राइब द सेलुलर इंजेक्शन प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। इंजेक्शन एंड सेल, अगर जो मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, उसका इंजेक्शन भी होता है। तो एक्सोसाइटोसिस दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये इट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस कैसा होता है? सेल इंजेक्शन, सेल removes the metabolic end product or secretory product by the process of exocytosis. सेल के बाहर कोई चीज अगर जानी है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो it leaves the cell through the process of exocytosis. Any example of exocytosis? The best example of exocytosis is what? The nerve terminal secreting neurotransmitter acetylcholine secrete होता है। कैसे होता है? बाय प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम एक्सोसाइटोसिस डिस्कस करेंगे, पर इसमें याद रखिए कि ये वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल बाइंड्स with the fuses with the membrane, and then the membrane it bind with a via V snare or T snare mechanism arrangement, and calcium are involved in the fusion of vesicle with the membrane. And in case of neurotransmitter there is one disorder called Lambert-Eaton syndrome, जब हम बात करेंगे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स से रिलेटेड होता है। डिफेक्टिव और डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लीडिंग टू व्हाट? मस्कुलर वीकनेस। आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्थेनिया ग्रेविस का। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है कि एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। इन दिस केस ऑफ Lambert-Eaton syndrome, exocytosis or the antibodies are formed against the calcium channels. हमने कहा ना कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस का। इस चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए तो क्या होगा? देयर इज डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। सो देयर आर मैकेनिज्म। अब फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, उसका रिवर्स ऑफ द एक्सोसाइटोसिस व्हाट? सेल ईटिंग। अब फेगोसाइटोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि एक्सोसाइटोसिस
removal of waste product, cellular waste product, or the cell product produced by the cell, like thyroid hormone, insulin hormone, they leave the cell through exocytosis. Phagocytosis भी बहुत important process है. अगर cell eat करना है किसी चीज को, one of the example is what, अगर बैक्टीरियाज हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, by the process of phagocytosis. Or phagocytosis is basically in this phagocytosis, it comes under the endocytosis, phagocytosis, pinocytosis, clathrin mediated clathrin एक यहाँ पर कोटिंग हो जाती है पेट पे, और उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन डेवलप किया जाता है मेम्ब्रेन में, एंड देन मेम्ब्रेन फ्यूजेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, और इट फॉर्म अ वेसिकल, एंड देन दिस वेसिकल डिटैचेस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द सेल. तो इसके क्या हुआ कि जो भी चीज एनगल्फ, पहले उसको एनगल्फ करती है, उसके बाद फ्यूजन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसको अंदर रिलीज कर देते हैं. अब इसका भी एक फेट है, यहां से रिलीज होने के बाद क्या होगा कि इसको डाइजेस्ट करना है. हु विल डाइजेस्ट दिस वेसिकल्स? इट इज डाइजेस्टेड बाय विच मशीनरी? एनीवन? Lysozyme. Lysozyme. Lysosomes is it is cell organelles which contain lot of enzymes. अगर अब why it is so important? अगर जो सेल ईटिंग हो गई है, सेल ने फेगोसाइटोसिस कर लिया है, जो प्रोसेस है सेल ईटिंग हो गई, उसके बाद द प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड बाय और डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स. और क्या होता है कि इसको समझने की कोशिश जब हम करते हैं कि लाइसोसोम डिसऑर्डर्स के, कि जहां पर एंजाइम कंजेनेटली एब्सेंट होते हैं, तो उन कंडीशंस में देयर आर डिजीजेस कॉल्ड लाइसोसोमल डिजीजेस. जैसे एक होती है फैब्री डिजीज, इट इज बिकॉज ऑफ द अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज ए डेफिशिएंसी. इसी तरह से होती है गॉशर्स डिजीज, इसमें क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डेफिशिएंसी होती है. टैकीसेकी डिजीज, इसमें क्या होता है, हेक्सोअमाइनेज ए की डेफिशिएंसी. These are rare disorder, but they are very fatal. Fatal means the person will die. Congenital deficiency है तो by birth होती है, और baby die within few years of birth. So lysosomal disorders को understand. अब cause of death को समझना है कि भाई why some kids die in early stages, because of the abnormality or deficient lysosomal functions, because of the abnormal genetic makeup. म्यूटेशन हो गया है, कुछ हो गया है, कैसे क्या हुआ, डेफिशिएंसी हो गई. सो phagocytosis, after phagocytosis there is the product, this vesicle is digested by lysosomes, otherwise there will be accumulation and leading to disorder depending upon the deficiency of the enzyme. Very important lysosomal diseases, इनको पीडियाट्रिक्स में जाना है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी डिजीजेस आपको समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप यू डोंट नो व्हाट इज प्रेजेंटेशन मिलेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स नहीं आ रहे, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डेफिसिट है. क्या होता है टैकीसेकी डिजीज में, मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस. अब यू कैन नॉट एक्सप्लेन ब्लाइंडनेस इफ यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइसोसोम टैकीसेकी डिजीज. आप कहोगे आंख ठीक नहीं है, नो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद आई, इट इज प्रॉब्लम with the lysosomes. In such families you have to take genetic counseling करनी होती है कि नेक्स्ट इस बेबी में जो डिसऑर्डर हो गया है उसको आपको कंट्रोल करना है, अगले बेबी में ट्रांसफर ना हो, अगले बेबी में ना आए, उसके लिए आपको जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ती है उन फैमिलीज की. बहुत लंबा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स में. ओके, अब बॉडी कंपार्टमेंट, सेल, हमने आपको बताया कि बॉडी जो है वो एक्वस है, मेजर पार्ट ऑफ बॉडी योर वेट इज एक्वस. तो टोटल बॉडी फ्लूइड्स की जब बात करते हैं तो वाटर की बात होती है, वाटर H2O. देयर इज fluid inside the cell, there is fluid outside the cell, there is fluid in the vessels. So lot of fluid in your body is actually 60% water, and we have to classify this fluid. Describe the body fluid compartment. Compartment का मतलब क्या है कि कैसे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. So there is extracellular fluid, there is intracellular body fluid. Intracellular का मतलब होता है 40% fluid inside the cell. Extracellular fluid where
outside the cell. It includes what? Interstitial fluid, blood and fluid, special fluid called transcellular fluid. So interstitial fluid or plasma, blood plasma comes under where? Under extracellular fluid. Total extracellular fluid कितना होता है? 20%. So body fluid compartment, extracellular fluid, intracellular. Total body fluid को दो जगह डिवाइड किया गया, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर. एक्स्ट्रासेलुलर में जो कंपार्टमेंट्स हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, प्लाज्मा है और ट्रांससेलुलर फ्लूइड है. ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है? एनीबॉडी, एनी आइडिया रिगार्डिंग ट्रांससेलुलर फ्लूइड? किसी को मालूम है ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या किसको कहते हैं, कहाँ होते हैं बॉडी में? एनीवन? आई एम ऑडिबल? हेलो? और वसीम देखना है, स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे. Yes, sir. वेरी ऑडिबल. ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहाँ होता है? like a cerebrospinal fluid, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. स्पेशल स्पेसेस में फ्लूइड होता है लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल. सीएसएफ. सीएसएफ कम्स अंडर ट्रांससेलुलर फ्लूइड. फ्लूइड जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है, आई में फ्लूइड होता है नहीं होता है? हाँ, इनसाइड योर आई एक्वस ह्यूमर होता है ना. It comes where you classify this fluid. This is a special fluid which is classified under broad heading of extracellular fluid. So transcellular fluid कहाँ जाएगा? Extracellular में जाएगा. Intracellular is very clear. इसी की एक और स्लाइड है. अगर आप देखें इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 28 लीटर्स. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है? टोटल फ्लूइड 14 लीटर. इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड द सेल्स 11 लीटर. प्लाज्मा 3 लीटर्स. एंड दीज फ्लूइड आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स दे कीप एक्सचेंजिंग. जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा. ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल के अंदर जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? The product of metabolism leaves the membrane and it's dissolved into the interstitial fluid, which is a part of extracellular fluid. अगर आप देखें कि excrete excess of fluid by kidney, यूरिन की फॉर्म में. लंग्स में जब आप बोलते हैं तो थोड़ा वेपोराइजेशन की फॉर्म में भी लॉस होता है. फीकल मैटर में ड्यूरिंग विंड समर्स, स्वेटिंग की फॉर्म में, थ्रू स्किन. अब इफ यू सी इनटेक आउटपुट, ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि नॉर्मल इनटेक कितना है. नॉर्मल इनटेक बिटवीन नॉर्मल फ्लूइड इंजेस्टेड 21 लीटर, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म 200 ml. तो टोटल कम्स अबाउट 2300, 2 to 3 लीटर्स के करीब आता है. एक्सरसाइज में देयर इज इंक्रीज डिमांड. ये आप लोग ट्रांसपेरेंसी से डेटा देख सकते हैं. बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी विल नॉट डिस्कसिंग इनटू द ग्रेट डिटेल्स ऑफ दिस स्लाइड. यू कैन रीड इट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी. नाउ न्यूट्रिएंट्स, अगर ये देखें कि न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, यू कैन सी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. इसमें ये वाली स्लाइड अगर आप देखेंगे, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देखिए ऑक्सीजन नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल रेंज एंड अप्रोक्सीमेटली नॉन लीथल, शॉर्ट टर्म नॉन लीथल वैल्यूज. कितना मैक्सिमम जा सकता है जहां पर कि सेल डेथ नहीं होगी, नॉन लीथल कहते हैं इसको. बट वेरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इट विल कॉज डेथ एंड डिसऑर्डर. So always remember the normal values, average values. For oxygen it is 40 millimeter of mercury. Range is 35 to 45 millimeter of mercury. Non-lethal for short duration 10 to 1000 millimeter of mercury. लेकिन if you see potassium, there is a very small range. 4.2 is the average value, 3.8 to 5.0 normal range. Short term 1.5 to 9. Very rare. It is very lethal. Person will die immediately if you cause hyperglycemia. इसी तरह से सोडियम भी हाइपरनेट्रीमिया कर देंगे या हाइपोनेट्रीमिया कर देंगे, द पर्सन विल डाई बिकॉज द रेंज फॉर सच लीथल रेंज इज वेरी वेरी नैरो. ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इलेक्ट्रोलाइट्स विद इन नॉर्मल रेंज. बहुत कॉमन चीज होती है जब पेशेंट वार्ड में आता है, आईवी लाइन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सोडियम इन्फ्यूजन देते हैं, पोटेशियम इन्फ्यूजन देते हैं, ग्लूकोज इन्फ्यूजन देते हैं, आइसोटोनिक नॉर्मली देते हैं, आइसोटोनिक इन्फ्यूजन देते हैं. अब आइसोटोनिक कितना होता है ये आप मुझको बताएंगे. नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा व्हाट इज आइसोटोनिक एंड व्हाट इज आइसोटोनिक ग्लूकोज सोल्यूशन कितने परसेंट होता है, सोडियम क्लोराइड कितने परसेंट होता है. ओके, अब एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि बॉडी मैकेनिज्म इज रेगुलेट. बॉडी जो अपने मैकेनिज्म को रेगुलेट कैसे करती है. स्टूडेंट क्लास में टीचर को कैसे बताते हैं वो क्लास अच्छी चल रही है खराब, बाय प्रोड्यूसिंग नॉइज.
अगर क्लास अच्छी जा रही है तो कोई नॉइज नहीं हो रहा है, और क्लास अच्छी नहीं जा रही है तो क्या होगा, नेचुरल है, देयर विल बी ऑटोमेटिकली देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइज। सो इसी तरह से बॉडी के अंदर भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है तो क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट एक्सेस, अगर T3 T4 थायराइड ज्यादा बनाने लगे तो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगी। दिस एंड प्रोडक्ट विल रेगुलेट द प्रोसेस दैट इनिशिएट द T3 T4 फॉर्मेशन। सो एंड प्रोडक्ट ही ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। तो रेगुलेटरी, बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्शन रखने के लिए, हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए होते हैं, उसको हम कहते हैं फीडबैक। अब फीडबैक दो तरह के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म है, मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव फीडबैक। एंड प्रोडक्ट विल, when there is excess of end product, it will try to stop the formation of fresh product by inhibiting the starting cycle। जहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे थायराइड T3 T4 क्या करेगा, इट विल ब्लॉक द फर्दर रिलीज ऑफ TSH और TRH। TSH रिलीज कहां से होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आता है, सर बताइए। प्यूटरी हाइपोथैलेमस देखो, होता है। पोस्टीरियर एंटीरियर करोगे तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, खाली पिट्यूटरी बोल दोगे काम चल जाएगा। हमने आपसे स्पेसिफिक थोड़ी पूछा है, हमने तो आपको पोस्टीरियर से नहीं आता है दोस्त, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, Anterior pituitary. जब आपको कंफर्म ना हो ना तो खाली पिट्यूटरी कह देते हैं, आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपने एंटीरियर पोस्टीरियर करना शुरू किया, गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो जब कंफर्म नहीं हो तो आप ना डायरेक्ट आप कह दो सब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, यू आर नॉट श्योर बिकॉज दिस इज नॉट टू यू, तो क्या होगा कि गड़बड़ हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। डोंट कमिट एरर्स, तो जस्ट से पिट्यूटरी से आता है। इसीलिए हम जब भी थायराइड का जो करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इनको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है या हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, तो T3 T4 इंक्लूडिंग TSH भी एस्टिमेट करते हैं। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक्सेस ऑफ T3 T4 causes the further production of thyroxine T3 T4। जो सब्सटेंस थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेस T3 T4। सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। अब आपको बॉडी में एटलीस्ट योर होम असाइनमेंट इज व्हाट, आपको हमको दो और बताने हैं होमवर्क में, आप अपनी चॉइस से हमको दो नेगेटिव फीडबैक बताइए। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, इट क्रिएट अ विशियस साइकिल, एंड नॉर्मली बॉडी में बहुत कम मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव फीडबैक है। अगर पॉजिटिव फीडबैक इज डेंजरस टू बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम, in rare situation they are productive, like clotting mechanism, an example of positive feedback, helpful positive feedback। Another example of helpful positive feedback is childbirth। so जो चीज इनिशिएट कर रही है that will further enhance the production of clot and this is example of positive feedback। so यहाँ पर देखिए नेगेटिव फीडबैक के दो एग्जांपल और हैं, स्वेटिंग ड्यूरिंग समर्स एंड शिवरिंग ड्यूरिंग समर्स ओ विंटर्स, सॉरी। गर्मी में क्या होगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। विंटर्स में क्या होगा, शिवरिंग, शिवरिंग लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट। अब करेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी की क्या फंक्शनैलिटी है कि वो करेक्शन करती है, जो भी अपनी डेविएट कर रहा है नॉर्मल सेट पॉइंट से उसको करेक्ट करती है, एंड दैट अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग गेन। करेक्शन जितना करेक्ट हुआ और डिवाइडेड बाय द एरर। 100% करेक्ट नहीं होता, हमेशा याद रखिए। अगर कोई abnormality हुई है तो बॉडी ट्राई टू करेक्ट इट, बट द करेक्शन इज नेवर 100%। सो जो करेक्शन हुआ दैट पार्ट डिवाइडेड बाय द एरर इज कॉल्ड गेन। अगर सपोज करिए 1.5 लीटर का ब्लड लॉस हो गया, ब्लड प्रेशर फॉल करा, फॉल करके इट रीचेस टू 50, बट देयर आर फीडबैक मैकेनिज्म इन द बॉडी दैट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर राइजेस फ्रॉम 50 टू 75। अब कितना करेक्शन हुआ इसमें, 50 से कितना हुआ, 75 हो गया, तो करेक्शन कितना हुआ, 75 माइनस 50, हाउ मच, एनीवन, हेलो, देखिए अगर 25 -25। 75 माइनस 50 25, और कितना था एक्चुअल, 100 से ब्लड लॉस हुआ था, तो एरर कितनी रह गई, 100% करेक्ट नहीं हुआ तो एरर कितनी रह गई,
Error भी 25 25. sir. So correction is 25 in this case, and error is 25. If you try to assess the effectiveness of this feedback system, correction कितना था? 25 divided by minus 25 divided by 25 minus 1. So gain of this feedback system is -1. कुछ सिस्टम बहुत इफेक्ट, कुछ जैसे बॉडी टेम्परेचर है, वे आर कंट्रोल्ड वेरी इफेक्टिवली. सो गेन इज वेरी हाई इन केस ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. एक्यूरेट चाहिए, वो कहीं कहीं जो है बहुत एक्यूरेट नहीं चाहिए, रफली काम चल जाता है. ब्लड प्रेशर में भी बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है. सो दिस इज अ मैकेनिज्म. दिस effectiveness of feedback system can be measured by gain. Gain is what? Correction divided by the error. I hope this is clear Sir? to you. Now, yes. सर द फीडबैक Yes. करेक्शन का साइन नेगेटिव क्यों है? देखिए नेगेटिव क्यों है? गेन में करेक्शन कितना हुआ? करेक्शन तो सिर्फ 25 ही हुआ ना. 100 माइनस 75. देखिए यहाँ पर क्या हुआ? ये 100 से 50 हुआ. 50 के बाद क्या हुआ कि करेक्शन कितना हुआ? 75 हुआ. तो 50 माइनस 75 कितना हुआ? -25 आ गया ना. क्लियर? ओके सर, थैंक यू. करेक्शन का मतलब क्या है कि जो लॉस हुआ था उसको उसने करेक्ट किया है. ठीक है, तो वो नेगेटिव है. एरर कितनी है? जो रह गई है. एरर कितनी है? अब 75 से आप 100 माइनस 75 कितना हुआ? देखिए 100 में से आपने 75 तो एक्चुअल वैल्यू आफ्टर करेक्शन आई, तो कितनी हुई? 75 माइनस 100 कितना हुआ? -25. और करेक्शन कितना था? ये तो करेक्शन हुआ. एरर कितनी हुई? 75 100 माइनस 75 25 प्लस हो गई. क्लियर हो गया? देखिए ये जरा सा एग्जांपल, थोड़ा सा दोनों में वैल्यू कॉमन आ गई है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा. एक्चुअल कितना था? 100 था आपका. अब करेक्शन होने के बाद कितना है? 75. तो 75 माइनस 100 कितना आया? 25. ये करेक्शन हुआ. 25 करेक्शन हुआ. एरर कितनी रह गई? 75 स्टिल शॉर्ट ऑफ 25. वो पॉजिटिव है. अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा. क्लियर? अब hemostasis, body try to maintain constant condition, constant environment, and it by regulatory mechanism, and regulatory mechanism are controlled by feedback mechanism, either by negative feedback mechanism or positive feedback mechanism. यहाँ पर हमने एक ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है. अब हीमोस्टेसिस ऐसे समझ में नहीं आती है. अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी. यू कैन ओनली हीमोस्टेसिस. देखिए फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You can only appreciate physiology when you try to understand disorders. एक चीज होती है बहुत कॉमन होती है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन आईसीयू इज व्हाट इट इज कॉल्ड मल्टी ऑर्गन फेलियर. मल्टी ऑर्गन फेलियर क्या है कि जो बॉडी है, इट इज द ऑर्गन्स ट्राई टू अचीव स्टेट ऑफ हीमोस्टेसिस, कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करती है. और ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन जब फेल होने लगेंगे तो क्या होगा? जो प्रोसेस है हीमोस्टेसिस का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा because of the disease, leading to what? One organ failure, one organ failure leading to what? Failure of another organ. And when all the organ will fail, this is called multi-organ failure. कभी किडनी फेल हो गया, because of kidney पता चला कार्डियक सिस्टम भी फेल हो गया. ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या घट गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फेल हो गया. सो आईसीयू में क्या होता है कि यू ट्राई टू मेंटेन हीमोस्टेसिस. आप नॉर्मल फिजियोलॉजी अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हो बाय डूइंग मैनेजमेंट. ट्रीटमेंट करके क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हीमोस्टेसिस अचीव करनी. अब मल्टी ऑर्गन फेलियर पैथोफिजियोलॉजी द स्टडी टू एक्सप्लेन हाउ, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी, हाउ द डिजीज प्रोसेस चेंजेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. हीमोस्टेसिस को कैसे डिस्टर्ब करता है उसको हम जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी. उसको समझने की कोशिश. डिजीज प्रोसेस लीडिंग टू व्हाट? एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल और डिस्टर्बेंसेस इन द हीमोस्टेसिस. मल्टी ऑर्गन फेलियर हमने समझ आपको बता दिया. अब आप जो लोग मेडिसिन में जाना चाहते हैं, देखिए फीवर हुआ, हेल्दी स्टेट से फीवर क्यों हुआ? एबनॉर्मलिटी क्या हुई? इन्फेक्शन हुआ. अब उसमें क्या हुआ? हेल्दी स्टेट में क्या हुआ? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हुआ. अब जिस इन्फेक्शन को अगर आप एंटीबायोटिक दें तो कंट्रोल हो सकता है. नॉर्मल 98.6 होता है. इन्फेक्शन से क्या हुआ? टॉक्सिन. दिस टॉक्सिन कॉजेज एबनॉर्मल सेटिंग ऑफ, जो सेट पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर का उसको डिस्टर्ब कर देगा. इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर टू 104 डिग्री फॉरेनहाइट. रीसेट सेट बॉडी पॉइंट फॉर द टेम्परेचर विच इज इन द ब्रेन.
where in the brain increases BMR. So this will cause infection. किस किस से हो सकता है?